Welcome student. Hope you all are fine and happy right now. So I am giving you 10 second times. Go and bring all your copies, book, pen, pencils and all, because while I am going to teach, I'll give you some questions regarding that, and you have to write the question associated with the line that has been given in the NCERT book. Okay, so go and bring it. Hope all of you have ready. So let's start today's class. So the first line: the reproductive parts of angiosperm are located in the flower. Angiosperm. In class 9 you have studied that there are main 5 divisions in the plant kingdom: algae, algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. So angiosperms are the plant who bears the flower, and these flowers are nothing but the reproductive organ for the plants. Understood? So the flowering plant that is called angiosperms, the flowering plant that is called angiosperm contain all the reproductive parts in their flower. समझ में आया? मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो उनके फ्लावर में ही मौजूद होते हैं. You have already studied in the different parts of the flower. So what are the different parts of the flower? There are main 4 different parts of the flower. 1 number sepal, 2nd petal, 3rd stamen and 4th carpel. So let's start writing the question. Name the different parts of a flower. It is the answer, the different parts of a flower. Flower, which kind of flower? Bisexual flower. Bisexual means the flower which contain both the sex. We will study about unisexual and bisexual flower in the next context. Just write the question. What are the different parts of a flower? So answer is given over here. Hope you understood. Next, just I want to show you the different part of the flower in the given diagram. Just see the diagram very clearly in the book. It is the longitudinal section. Longitudinal section means the blade has been used from upside to downward to cut the flower. Flower को काटने के लिए blade को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है. ठीक है? So the lower portion, the green portion, green leaf like structure, ये जो green पत्तों की तरह जो स्ट्रक्चर देखते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल. एक को बोलेंगे सेपल और कलेक्टिवली सबको मिला के बोलेंगे हम लोग कैलिक्स. ठीक है? एक पत्ते को हम लोग बोलेंगे सेपल और कलेक्टिवली इसमें 5 पत्ते होते हैं, कभी 5 कभी 5 से भी ज़्यादा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स. So the green portion of the flower which protect the flower in their bud condition. अब इस सेपल का काम क्या है? What is the function of the sepal? Sepal covers the flower in their bud condition. सेपल क्या करते हैं? फ्लावर को कवर करके रखते हैं जब वो फ्लावर बच्चा होता है बड कंडीशन में, एंड प्रोटेक्ट इट, और उसका प्रोटेक्शन करते हैं. सेपल और यू कैन से कैलिक्स कवर्स द स्मॉल फ्लावर और flower in their bud condition. Second इसका और फंक्शन क्या है? सेकंड नंबर फंक्शन, इफ इट इज ग्रीन इन कलर, मेनी टाइम्स इनका कलर ग्रीन ही होता है, लगभग 90% केसेस में. 10% केसेस में ये ग्रीन नहीं होते. सो इफ इट इज ग्रीन इन कलर दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड देयर बाय दे प्रोड्यूस द फूड. तो इसके आपने 2 फंक्शन देखा. सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस? यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन सेपल and calyx. It is the first hole. सेपल जो होता है ये फर्स्ट होल, होल माने पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, HWHORL, होल. So what is the first hole? Sepal is the first hole of a flower. Understood? Part of a flower, और sepal is the first hole of a flower. Next question आता है, what is the
कलेक्टिव नेम ऑफ सेपल्स, द कलेक्टिव नेम ऑफ सेपल इज कैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट द फंक्शन ऑफ सेपल। सेपल का फंक्शन क्या है और कैलिक्स का, स्टेट द फंक्शन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स का क्वेश्चन फंक्शन क्या है? सो कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन देयर बर्ड कंडीशन। कैलिक्स protect the flower in their bud condition, and if it is green it does photosynthesis. If it is green it does photosynthesis. So hope आप लोगों को ये फर्स्ट होल समझ में आया। फर्स्ट होल मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर। सेकेंड होल क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड होल? द सेकेंड होल इज कॉल्ड पेटल। सो वन लीफ ऑफ द पेटल, वन लीफ ऑफ द कलरफुल फ्लावर इज कॉल्ड पेटल। एक को बोलेंगे पेटल, प्लूरल हो गया पेटल्स, और कलेक्टिवली सारे पेटल्स को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोला। सो द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स. The colorful part of the flower is called petal. ठीक है, it is collectively called corolla. It is collectively called corolla. And what is the function of corolla? Corolla attract the insect for pollination. Corolla attract the insect for pollination. Corolla पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। आई विल एक्सप्लेन द टर्म पॉलिनेशन, वेट, पॉलिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। एंड नेक्स्ट, कोरोला प्रोटेक्ट द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कोरोला हेल्प टू प्रोटेक्ट द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। समझ में आया? सो देयर आर टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ कोरोला। आप लोगों ने सेकेंड होल पढ़ लिया। फर्स्ट होल का नाम क्या था बेटा? कैलिक्स। सेकेंड होल का नाम क्या हो गया? कोरोला। हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड होल। थर्ड होल का नाम क्या है? देखते हैं, चलो देखते हैं बेटा। थर्ड होल का नाम है स्टेमेन। इट इज द थर्ड होल। थर्ड ऑफ द होल, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड होल? थर्ड होल ऑफ द फ्लावर, होल, WHORL. हैं? What is the name of the third hole of the flower? Stamen. It is the male part of the flower. Stamen को हम लोग थर्ड होल बोलते हैं। स्टेमेन तो एक को बोलते हैं स्टेमेन। ये जो देख रहे हो ना, ये आप लोग येलो येलो कलर, ऑरेंज कलर का ये जो देख रहे हो लंबे लंबे, ये एक स्टेमेन है। यहाँ पे आपको कितना स्टेमेन दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 स्टेमेन। सो स्टेमेन को भी कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? कलेक्टिवली मतलब 6 को एक साथ लेकर के यदि हम बोलें तो क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम है। यस। सो द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम। थर्ड होल का नाम क्या है? एंड्रोसियम। Androsium is the male part of the flower. All stamen collectively called androsium. जितने भी स्टेमन हैं सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेमन? स्टेमन के 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक ऊपर में गेहूं के दाने जैसा पार्ट है और नीचे में एक फिलामेंटस पार्ट है। फिलामेंट मतलब पाइप के जैसा स्ट्रक्चर। सो ये देखो, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। सो द अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। अपर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? एंथर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर पार्ट? द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। क्या कहेंगे इसको? फिलामेंट। क्या कहेंगे बेटा? फिलामेंट। सो स्टेमन हैज 2 डिफरेंट पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। समझ में आया? एंथर एंड फिलामेंट। सो
स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। स्टेमन क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेमन और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंथर एंड फिलामेंट? सो द एंथर कंटेन a lots of pollen grain. Anther contain a lots of pollen grain. एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। और पोलन ग्रेन का फंक्शन क्या है? पोलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। समझ में आया? सो what is the main function of anther? Anther contain a lots of millions of pollen grain, and these pollen grain contain the male gamete. Understood? So what is the function of filament? Filament attach the anther with the flower and supply the nutrient. Filament attach the anther with the flower एंड सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। देखो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जो लोग चाहते हो कि नोट डाउन करो वो सारे पॉइंट्स को क्लियरली नोट डाउन कर लो। दोज स्टूडेंट हु वांट टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग ओवर हियर, दे कैन नोट डाउन इन देयर रफ कॉपी एंड फर्दर दे कैन मेक द फेयर वर्क. It will be very helpful for your NCERT for your CBSE test, okay? And thereby you can understand each and every word and each and every terms that has been given in the NCERT book and also in the photo and diagram. Understood? So if you want, you can note from here. Now we are going to study about the female part of flower. Now see, this is the female part of the flower. Yeah, this is the female part of the flower that has been covered by the blue line over here. So this is a single piece. If it is a single piece, it is called pistil and collectively called gynoecium. Pistil is a single piece of female part. If it is in cluster, or you can say if it is in many numbers, all together they are called gynoecium. So gynoecium. It has been mentioned over here. So single piece of pistil is called pistil and many pistil together called gynoecium. यहाँ पे दिया होगा बेटा बहुत क्लियरली, एंडोसियम एंड गाइनोसियम. अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गाइनोसियम? जस्ट सी ओवर हियर. देखते हैं, चलो. ओह सॉरी, हाँ अब देखते हैं. सो सी, द अपर पार्ट ऑफ द गाइनोसियम इज फ्लैट. दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा. This portion is called stigma. There is a cylindrical part that comes at the lower part of the gynoecium. Gynoecium stigma को एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है with the ovary. So इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल. So stigma is the upper flattened portion of the flower. Style is the middle. You can say cylindrical part of the flower, cylindrical part of the pistil, and at the lower end you will see there is a oval structure. It is called ovary, and inside the ovary there is a ovule. ये जो रेड कलर का देख रहे हो ये है ovule. And ovule contain the female sex organ, that is egg. ovule के अंदर egg होता है, यानी कि female sex organ होता है. So ovary के अंदर होता है ovule. अच्छे से समझो, ओवरी के अंदर ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ओवल स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ से लेकर के, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी. ओवरी के अंदर ये जो पिंक कलर का पार्ट आप देख रहे हो ये हो गया ओव्यूल. और ओव्यूल के अंदर देखो सेल्स बने हुए हैं ना छोटे छोटे. नीचे वाला जो सेल्स होता है वो होता है एग सेल. सो ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल, यानी कि फीमेल गैमेट. तो
यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया, आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम। गाइनोसियम के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन क्या है? सो स्टिग्मा इज द अपर फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ द फ्लावर वेयर द पोलन ग्रेन फॉल्स, सो इट इज द साइट ऑफ पॉलिनेशन। स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट्स गिरते हैं, इसलिए ये स्टिग्मा फ्लावर का यानी फीमेल ऑर्गन का पोलिनेटिंग साइट है, मतलब यहाँ पे पोलिनेशन होता है, पोलिनेटिंग साइट, द साइट ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, सो स्टिग्मा इज द प्लेस वेयर पोलन ग्रेन फॉल्स फ्रॉम एंथर and it is a site of pollination, it helps in the pollination, understood? So after pollination the pollen grain move through the cylindrical part, that is from style to the ovary। जब ये pollination हो जाता है तो मेल गैमेट जो होता है, pollination के बाद जो मेल गैमेट होता है वो इस पाइप के अंदर से होते हुए किसके पास जाता है? ओव्यूल के पास जाता है। सो द मेल गैमेट मूव फ्रॉम स्टिग्मा to the ovary by making a pollen tube बनाते हुए नीचे की तरफ उतरता है, इनसाइड द स्टाइल के अंदर ही अंदर एक ट्यूब बना करके नीचे की तरफ उतरता है, अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? ओवरी कंटेन द ओव्यूल, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, यदि एक ओव्यूल हुआ तो एक सीड बनेगा, जैसे आम के अंदर एक सीड है ना, इसका मतलब आम के फ्लावर के ओवरी में एक ही ओव्यूल था, इसलिए एक ही सीड बना। अब तरबूज के बारे में बात करते हैं, कितने सारे सीड हैं? बहुत सारे सीड हैं तरबूज में, तो इसका मतलब तरबूज के एक फ्लावर के ओवरी में, एक फ्लावर में एक ही ओवरी होगा, एक फ्लावर के एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स थे, क्योंकि हर ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट होगा, है ना? तो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकता है। यदि एक ओव्यूल हुआ तो एक ही सीड बनेगा, और एक से ज़्यादा ओव्यूल हुआ तो एक से ज़्यादा सीड बनेगा। समझ में आया ना? सो सीड आर द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द प्लांट, और ये जो सीड बना वो क्या है? वो प्लांट का ऑफ स्प्रिंग है, उसका बच्चा है, वो फिर से नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द plant and it helps in the reproduction of the plant. I hope all of you have understood the whole phenomenon and the parts of the flower that has been explained by me. Now I am going to explain each and every part in detail. So what are the different parts of a flower? The different parts of a flower are sepal, that is the first hole, petal, second hole, stamen, third hole, and carpel. Carpel and pistil are the same thing. कार्पल और पिस्टिल एक ही चीज़ होता है, ठीक है? इसको अलग अलग ना समझा जाए। अब कलेक्टिवली में जो मैंने जो नाम बताया था वो क्या था? सेपल का हो जाएगा कैलिक्स, पेटल का हो जाएगा कोरोला, स्टेमन का हो जाएगा एंड्रोसियम, और कार्पेल का हो जाएगा गाइनोसियम। अंडरस्टूड? सो स्टेमन एंड कार्पेल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ बात आती है कि इस चार में से सबसे ज़रूरी कौन सा दो पार्ट है? तो सबसे ज़रूरी है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, बाकी सब रहे ना रहे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है फॉर देयर रिप्रोडक्शन, है ना? सो स्टेमन एंड कार्पेल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स, क्योंकि इसी पार्ट्स में जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं। व्हाट पॉसिबल फंक्शन वुड बी द पेटल एंड सेपल सर्व्स? तो पेटल और सेपल का फंक्शन क्या है बेटा? मैंने बताया था ना, बताओ तो। हाँ, जिनको नहीं समझ में आए वो रिकैप कर ले वीडियो को, थोड़ा पीछे से फिर से देख ले, सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने हर पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझाया है ना? नेक्स्ट, द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। हाँ, अब बातें आती है कि फ्लावर, अच्छा पहले बताओ हम लोग यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स होगा तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलेंगे,
और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि दोनों सेक्स होगा, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स होगा, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। फ्लावर में, एक फ्लावर में ओनली एक सेक्स भी हो सकता है, यानी कि आइदर अ फ्लावर में बी द मेल फ्लावर और बी द फीमेल फ्लावर। एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, यदि उसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा तो वो मेल फ्लावर हो जाएगा, या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा तो फीमेल फ्लावर हो जाएगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, पपाया एंड वाटरमेलन, है ना। इफ यहाँ पे लिखा हुआ देखो, व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमन, या तो उसके पास स्टेमन होगा तो मेल फ्लावर हो जाएगा, और कार्पल, और हो जाएगा कार्पल। और यदि फ्लावर दोनों सेक्स मौजूद रखता है, बहुत गड़बड़ है भाई, दोनों सेक्स मौजूद है, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों मौजूद है, इन दैट केस दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल में बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ये मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स दोनों इनके पास है। एग्जांपल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड फ्लावर। होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है, डिफाइन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद एग्जांपल। डिफाइन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट, इट कंटेन बोथ द स्टेमन एंड कार्पेल, वही चीज लिखा हुआ है जो उसका डेफिनेशन है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बताया था ना बेटा, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। स्टेमन के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स, है ना। और ये कैसा कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ये लिखा हुआ है देखो। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। कैसा कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, जी हाँ। यू मस्ट हैव सीन द येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टक ऑन योर हैंड इफ यू टच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर। भगवान को फ्लावर वगैरह चढ़ाते हो ना, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी येलो येलो पार्ट आपके हाथ वगैरह में चिपक जाता है ना, वो क्या है, वो जो है पोलन ग्रेन है, वो कार्पेल से, सॉरी स्टेमन से टूट टूट के आपके हाथों में चिपक गया है। समझ में आया। सो कार्पेल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। कार्पेल मीन्स फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड, है ना, अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। जरा देखो यहाँ फोटो में देखो, ये बीच में है। सो कार्पेल इज, देखो बीच में प्रोटेक्टेड है, फीमेल पार्ट प्रोटेक्टेड है। द कार्पेल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। ये 3 पार्ट से बने होते हैं। चलो डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, समझ में तो आई। चलो देखते हैं पार्ट, सॉरी द swollen बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। नीचे का जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये देखो ये फूला हुआ पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी, ये फूला हुआ पार्ट। और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग, है ना। देखो, सो द swollen पार्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। मिडिल इलोंगेटेड पार्ट, बीच का जो लंबा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, इज स्टिकी, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। एंड इन ईच ओव्यूल एंड एग सेल, जितना ओव्यूल होगा, हर एक ओव्यूल में एक एग सेल होगा। तो जितना सारा ओव्यूल होगा उतना सारा एग सेल होगा और उतने सारे सीड बनेंगे। द मेल्स जर्म सेल प्रोड्यूस इन बाय पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल यानी कि मेल गैमेट बनाता है। फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, और वो मेल गैमेट कहाँ जाके फ्यूज होता है, फीमेल गैमेट में के साथ फ्यूज होता है ओव्यूल में जाके। द फ्यूजन ऑफ द जर्म्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स जाइगोट, और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये देखो यहाँ पे जाइगोट बनेगा। एंड द जाइगोट प्रोड्यूस अ सीड, और जाइगोट क्या बनाएगा, सीड। देखो, फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस अ जाइगोट विच इज कैपेबल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। आज के लिए बस इतना ही रहने दो, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबे हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास करना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट
डे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे और डिटेल में समझेंगे। मैं और बहुत स्पीडली पढ़ा सकता था, बट एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करने के चक्कर में थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है। डोंट वरी, समझ में आना चाहिए बच्चों को, ये ज़रूरी है। सो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। मेक द नोट दैट द क्वेश्चन आई हैव गिवन, and if you have any problem regarding understanding, ask me. Okay, bye bye.